गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। ओके, वी विल टॉक अबाउट इट मोर later in the video, but for now today is upper body, so we'll go hit chest, back and shoulders today. Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away, and I surrender. I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground, so I surrender. And I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground. You don't owe me anything, but I believe that you can show me all the things that I've been needing. I'm just hoping you give me a reason to go on. And I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away, and I surrender. I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground, so I surrender. And I surrender.
वी आर बैक फ्रॉम जिम एंड जिम सेशन आज की अगर बात करी तो काफ़ी बढ़िया था, बोथ एक्सरसाइज वाइज भी, फील वाइज भी एंड रिकॉर्डिंग वाइज भी, क्योंकि आज आई थिंक कि काफ़ी बढ़िया शॉट्स आए हैं एंड या आज भीड़ भी थोड़ी कम थी, सो विन विन। एनीवे यू माइट हैव नोटिस्ड मैंने शोल्डर रूटीन में साइड डेल्ट्स के लिए जो मैं लैटरल रेजेस करता था उनकी जगह मैं अब रिसेंटली थोड़ा वो करने लगा हूँ, बाय रेजेस। एक नई मुझे एक फ्रेंड ने बताई थी, तो आई एम इन्जॉइंग इट फॉर नाउ। शोल्डर्स में वैसे भी थी नहीं मेरे पास ज़्यादा वैरायटी, लेटरल रेजेस ही थे, क्या बोलते हैं, मिडिल डेल्ट के लिए, बट या अब 2 हैं एंड आई एम फीलिंग इट वेरी सपोर्टिव इन अ सेंस कि आपकी बॉडी से बहुत सारे जॉइंट्स का वो लोड हटा लेगी, आपको स्टेबलाइज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खड़े होके या बैठ के आप जब लगाते हो लैटरल रेजेस तो आई डोंट नो, मेरा हमेशा एंड करते वक्त जैसे ही एंड होने वाला होता है तो मेरे ट्रैप्स हमेशा फिटिक हो जाते हैं। आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस, बट मेरे साथ यही इशू था। बट इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है, क्योंकि आई थिंक यू आर लेइंग डाउन इन सच अ वे कि आपके ट्रैप्स वर्क ही नहीं हो रहे हैं, योर बैक इज़ कम्प्लीटली ऑन अ सपोर्ट ऑफ अ बेंच, सो या pretty good exercise I think. So anyway, fresh out of gym and जहाँ जिम हमेशा शोरगुल और क्राउड से भरा होता है एंड नॉइस से भरा होता है, आई एम गोना टॉक एग्जैक्टली अपोजिट टुडे। ही इज़ अ थिंग, हमेशा जो लोग होते हैं दे थिंक लोनलीनेस और बीइंग अलोन इज़ अ बैड थिंग, दे फियर इट, but I think exactly opposite. I think enjoying being alone and enjoying solitude is a superpower if you know how to use it. So I want you to think back and try to remember कि आप last time अकेले कब बाहर गए थे. Maybe try to remember when you went to the movies alone or to a restaurant alone. No phones, no scrolling, no nothing. I think the majority answer will be never. You know why? Because I think we are forced to think that being alone is like being lonely, or being alone is like being a loser. I've been like this my whole life. और ज़्यादा compoundly अगर मैं कहूँ तो I think every introvert is like this. ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स के पास फ्रेंड्स नहीं होते हैं और फैमिली नहीं होती है और कॉलीग्स नहीं होते हैं, सब होता है उनके पास, बट द ओनली थिंग दैट मेक्स देम इंट्रोवर्ट इज़ दे नेवर क्रेव द क्राउड। उन्हें हमेशा कोई कंपेनियन या कोई दोस्त नहीं चाहिए कहीं पर भी जाने के लिए और हमेशा हर टाइम। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक डूइंग थिंग्स अलोन इज़ अ टाइप ऑफ अ मेडिटेशन, और आई वुड से spending time with yourself rather than spending it with your friends or colleagues pointlessly I'm saying कि हमेशा आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर I think you are missing something and you're wasting your time knowing someone else before knowing yourself. And do you know ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि हमेशा दूसरों के साथ ज़्यादा रहेंगे इंस्टेड अकेले रहना? Because I think they fear themselves, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो you cannot lie to yourself, right? And for if आप 1 घंटे के लिए अकेले हो and you have nothing, you start questioning yourself and you cannot lie. You are not performing for anyone else. You are just alone with your thoughts. When you start asking the hard questions to yourself, it is tough to answer. Hard questions as in कि क्या मैं वहाँ हूँ जहाँ मैंने सोचा था कि मैं होऊंगा आज? The answer is probably no. क्या मैंने वो अचीव कर लिया है जो मैंने 1-1.5 साल प्रॉमिस किया था अपने आप को, या फिर अपने चाइल्डहुड में प्रॉमिस किया था अपने आप को? The answer is again probably no. Or am I happy? Or maybe I'm just successful in a field that I didn't even like and I just accepted the fate. I think that's why people fear themselves and they want to keep playing and keep acting in front of others
than be honest with themselves. Think about it. Whenever you are lying in a bed, या कभी भी आप अकेले बैठे होते हो या अकेले वॉक कर रहे होते हो बिना फ़ोन और बिना किसी चीज़ के, ये क्वेश्चंस पूछने वाली जो आवाज़ आपके दिमाग में से आती है, दिस इज़न्ट योर एनिमी. आई थिंक दिस वॉइस इज़ योर इंटरनल कंपास, always telling you that this isn't it, you are not done yet. I think we should start listening to it and try to follow it. क्योंकि आप जितनी बार अपने आप को टोकोगे वो 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव है किसी और के क्वेश्चन करने से या किसी और के टोकने से. क्योंकि उन्हें तो आप इग्नोर कर दोगे, वो मे बी दूसरी बार नहीं बोलेंगे, बट आप और आपका कॉन्शियस कभी भी आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता. वो हमेशा पूछता रहेगा, वो हमेशा बताता रहेगा कि ना यू कुड हैव डन बेटर. अगर आप में से कोई इंट्रोवर्ट अगर देख रहा होगा तो वो मेरी बात को काफ़ी अच्छे से समझेगा कि कभी अगर आपके साथ हुआ हो कि आप किसी क्राउडेड प्लेस में हो या किसी पार्टी में हो और मे बी क्लब में हो, यू फील मोर अलोन देयर बीइंग इन योर रूम. इट्स सिंपल, यू डोंट बिलोंग देयर, और मे बी यू आर देयर बिकॉज ऑफ जस्ट पीयर प्रेशर or your insecurities. But I think being alone and stopping the noise of the world is very important. क्योंकि जब आप ये दुनिया का शोर सुनना बंद करोगे तभी आप अपने आप से बात कर पाओगे, अपने आप को ज़्यादा सुनोगे. And I think उसी टाइम पे आप ज़्यादा better decisions ले सकते हो. When people advise you to do something and you fail, you blame them. In some way you don't take responsibility of anything, right? बट अगर इसी जगह आप दूसरों को ना सुन के अपने डिसीजंस खुद लेके अपनी रिसर्च खुद करके अपने खुद के गट को ट्रस्ट करके डिसीजंस लेते हो एंड फेल होते हो, यू टेक द हिट एंड यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर डिसीजन एंड इवेंचुअली आप उससे बहुत ज़्यादा लर्न करते हो एंड काफ़ी जल्दी लर्न करते हो नेक्स्ट टाइम के लिए. थिंक अबाउट ह्यूमन एनाटमी. वी हैव 2 ears, 2 eyes, 2 nostrils, 2 hands, 2 legs, but only 1 mouth. You know why? At least मैं ये बिलीव करता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें जो 2 हैं उनसे आपको ज़्यादा काम करना चाहिए जो उनको असाइंड है. आपको ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए, आँखों से देखना ज़्यादा चाहिए, हाथों से काम ज़्यादा करना चाहिए. बट अगर मुंह सिर्फ एक है और उसके पास ऑलरेडी 2 काम है, खाना और कन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेट करना, आई थिंक यू शुड कीप इट शट when it's not needed. आपको हमेशा हर चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन होना ज़रूरी नहीं है. If you are silent, then it's better for you ultimately. Of course, लोग हमेशा बोलेंगे आपको कि आप इतना शांत क्यों रहते हो, आप बोलते क्यों नहीं हो. And I'm sure maybe introverts ने फेस किया होगा, at least मैंने फेस किया था. Last time, I think last week ही मुझसे जिम का जो ट्रेनर भैया हैं एंड एक और जिम का मेंबर जो है, मुझसे आउट ऑफ द ब्लू आके पूछ लिया एकदम से कि मैं इतना शांत क्यों रहता हूँ, मैं इन्जॉय क्यों नहीं करता हूँ. एंड आई डोंट हैव एन आंसर, क्योंकि मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं अकेले इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं जिम करने आया हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ एंड आई एम हैविंग फन. दे वांट मी टू कि अदर जो लोग आते हैं, अदर जो मेरी एज के लड़के आते हैं ज़्यादातर, वो हमेशा ग्रुप बना के बैठे रहेंगे. ये पूरा ग्रुप एक ही मशीन पे लगा रहेगा बारी बारी से एंड एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा होगा, बाकी सारे पीछे बातें कर रहे होंगे, फ़ोन चला रहे होंगे. आई थिंक दे मीन दैट इज़ एन्जॉयमेंट, बट नो, मेरे लिए वो एन्जॉयमेंट नहीं है. उसका भी पॉइंट आता है जब मेरे दोस्त आते हैं घर पे एंड व्हेन वी मीट, मैं भी वही करता हूँ, वही सब चीज़ें करता हूँ. बट आई थिंक मैं जो चीज़ करने जिम में गया हूँ मैं वही करता हूँ एंड चुपचाप वापस आ जाता हूँ. मेरा और ज़्यादा वहाँ पे कोई काम ही नहीं है. मेरा वहाँ पे 45 मिनट्स या 50 मिनट से ज़्यादा रुकने का कोई मतलब ही नहीं है. अगर मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो रहा है तो मेरा वहाँ पे रुकने का क्या मतलब है? आई डोंट गेट इट, बट पीपल डू स्टे. आई डोंट नो व्हाई, बट दे मेक जिम लाइक अ सोशल प्लेस. ये कोई बुरी बात नहीं है, सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक कुछ जगहों को छोड़ देना चाहिए. क्या आप सेमेटेरी में ऐसे करोगे या कोई सीरियस माहौल में, क्या लाइब्रेरी में आप ऐसे करते हो? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि यहाँ पे
सोशलाइज नहीं करना है, यहाँ पे आना है तो सिर्फ पढ़ो, बुक्स पढ़ो शांति से, बिना कोई नॉइज़ करे एंड चले जाओ, राइट. So yeah, I treat gym like that. For conclusion, being alone is not a curse. I think when you are alone, जब आप अकेले होते हो तभी आपके पास आपके सबसे बेस्ट आइडियाज़ आते हैं. थिंक अबाउट इट. बहुत लोग बोलते हैं कि उनके बेस्ट आइडियाज़, वो बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज़ शावर लेते हुए आते हैं और खाना खाते वक्त आते हैं, राइट. इट इज़ लाइक दैट. When you are alone, you are thinking, you're talking to yourself, you're questioning your life choices, or you are thinking about anything. You think about it more creatively. You stay in focus. You can take it as a challenge. अपने दिन में से 1 घंटा या आधा घंटा निकालो अगर हो सके तो, and go on a walk. Not using your phone. ठीक है, गाने सुन सकते हो और नहीं भी सुन सकते हो, आपकी चॉइस है वो. If it helps, you think creatively और आपका बढ़िया आइडियाज़ आते हैं गाने सुनते वक्त, तो thumbs up. But try doing it and try making it a habit. Trust me, you will know yourself much better, and it is way better than knowing others. So that is it for the video. If you liked it, drop a like and subscribe. Bye bye.